પીએમ મોદી રાજૌરીના નૌશેરા ખાતે પહોંચ્યા છે। રાજૌરીના નૌશેરામાં દિવાળી મનાવશે પીએમ મોદી। પીએમ મોદી સેનાના જવાનો સાથે દિવાળી મનાવશે। પીએમ મોદી પહોંચી ગયા છે સેનાના જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવા માટે। દેશવાસીઓને પણ પીએમ મોદીએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। આજના પર્વ નિમિત્તે દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે લોકોને શુભેચ્છા પાઠવી છે। તો સાથે સાથે જ પીએમ મોદી સેનાના જવાનો સાથે પણ ઉજવણી કરવા માટે દિવાળીની ઉજવણી કરવા માટે પહોંચી ગયા છે। દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો પીએમ મોદી સેનાના જવાનોના જે પહેરવેશ હોય તેમાં જ જોવા મળી રહ્યા છે। સલામી આપી હતી પીએમ મોદીએ અને હવે સેનાના જવાનો સાથે તેઓ ઉલ્લાસપૂર્વક દિવાળીની ઉજવણી કરશે। પીએમ મોદી નૌશેરા ખાતે પહોંચી ગયા છે। જવાનોની સાથે પીએમ મોદી હાલમાં ઉપસ્થિત છે, તેઓ પહોંચી ગયા છે અને ખાસ આજે જે દિવાળીનો પર્વ છે તેને લઈને સેનાના જવાનો સાથે તેઓ આજના દિવસે ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે પીએમ મોદી દર વર્ષે આવી રીતે ઉજવણી કંઈક અલગ રીતે જ કરતા હોય છે, ત્યારે આજે દિવાળીનો પર્વ છે અને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભારતીય સૈનિકો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લાના નૌશેરા સેક્ટર ખાતે પહોંચી ગયા છે। તેઓ આજે અહીં જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવાના છે। પીએમ મોદી એવા સમયે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે જ્યારે પૂંછમાં આતંકી પ્રવૃત્તિઓ વધી ગઈ છે અને આ દરમિયાન દિવાળીના દિવસે વડાપ્રધાન મોદીએ દેશના લોકોને પણ દિવાળીના પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। ત્યારે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વડાપ્રધાન મોદી છે તે બોર્ડર પર પહોંચી ગયા છે, લોકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને સાથે જ આજે સેના પર જે સીમા છે ત્યાં સેનાનીઓ સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવાના છે। વડાપ્રધાન મોદીએ આજે સવારે ટ્વીટ કર્યું છે કે દિવાળીના શુભ અવસરે દેશના લોકોને મારી હાર્દિક શુભેચ્છા। મારી શુભેચ્છા છે કે આ પ્રકાશ પર્વ તમારા દરેકના જીવનમાં સુખ, સંપન્નતા અને સૌભાગ્ય લઈને આવે। દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। અને બીજી બાજુ પીએમ મોદી સૂત્રો તરફથી જાણવા પણ મળ્યું હતું કે વડાપ્રધાન જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવાના છે અને 2019 પછી પીએમ મોદી આજે બીજી વખત રાજૌરી ખાતે પહોંચી ગયા છે। 2 વર્ષ પહેલાં પણ તેમણે જવાનો સાથે રાજૌરી ખાતે દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી અને તે જ પ્રકારે આજે પણ આ વર્ષે પણ 2021ની દિવાળી અને 2019ની દિવાળી તેઓએ સેનાના જવાનો સાથે મનાવી। આજે સેનાના જવાનો સાથે પીએમ મોદી દિવાળીની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છે। વડાપ્રધાન લગભગ દરેક દિવાળી ઉજવવા માટે જવાનોની વચ્ચે જ પહોંચી જતા હોય છે, તે પ્રકારે આજે પણ તેઓ પહોંચી ગયા છે રાજૌરી ખાતે। ફોનલાઈન પર સંવાદદાતા મનોજ અગ્રવાલ વધુ વિગતો સાથે જોડાઈ ગયા છે। મનોજ, દર વર્ષે વડાપ્રધાન મોદી જવાનોની વચ્ચે પહોંચી જતા હોય છે, આ વર્ષે પણ તેઓ પહોંચી ગયા છે જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવા માટે, શું છે વધુ વિગતો? પીએમ મોદીની જે નૌશેરાની આ બીજી મુલાકાત છે, 3 વર્ષમાં બીજી મુલાકાત છે। ગઈ વખતે પણ ગયા હતા। પીએમ બન્યા બાદ તેઓ અવશ્ય જવાનો સાથે દિવાળી મનાવશે। તેઓ સીએમ હતા ત્યારે પણ આ પરંપરા તેમને જાળવી હતી। પીએમ બન્યા બાદ સિયાચીનના સરહદે તેમને જવાનો સાથે દિવાળી મનાવતી। આજે તેઓ રાજૌરીના નૌશેરા સેક્ટરમાં પહોંચ્યા છે, ત્યાં પણ સેનાના અધ્યક્ષ છે તેઓ પણ સાથે છે। ગઈકાલે પણ તેમણે મુલાકાત લીધી હતી। પીએમ મોદીના આવ્યા પહેલાની તમામ સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન બનાવી હતી। આજે જવાનો સાથે દિવાળી મનાવશે અને આવતીકાલે તેઓ કેદારનાથ જઈ રહ્યા છે। કેદારનાથ પણ તેમનું પ્રિય સ્થળ છે, ગઈ વખતે પણ તેઓ ગયા હતા અને આ વખતે તેઓ ફરી જઈ રહ્યા છે। જોકે આ વખતે કેદારનાથનું જે અર્થ છે જે અલગ છે કે આદિ શંકરાચાર્યની જે સમાધિ બનાવી છે તેનું તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે। પણ સૌથી મહત્વ કે રાજૌરીના નૌશેરામાં જે છેલ્લા ઘણા સમયથી શાંતિ પ્રવૃત્તિ રહી છે, તો જવાનોનો હોંસલો જે ઉત્સાહ વધારવા માટેનું આ કામ વડાપ્રધાન કરી રહ્યા છે। આજે જવાનો સાથે દિવાળી મનાવશે, શુભેચ્છાઓ આપલે કરશે, મીઠાઈઓ પણ વહેંચશે। બિલકુલ મનોજ, અને ખાસ કરીને પીએમ મોદી એવા સમયે રાજૌરી ખાતે પહોંચ્યા છે કે જે સમયે આતંકી પ્રવૃત્તિઓ છે તે દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે। ચોક્કસ 370ની કલમ હટાવ્યા બાદ જે હતું કે જે રીતે જમ્મુ કાશ્મીર અને ખીણના વિસ્તારો છે તેમાં શાંતિ પ્રવર્તશે, પણ ધીરે ધીરે આતંકીઓ બેફામ બન્યા છે। છેલ્લા 4 મહિનાની જો વાત કરીએ તો 14થી વધુ જવાનો શહીદ થયા છે। જોકે બીજી બાજુ આતંકીઓનો પણ મોટા પાયે સેનાએ
ખાતમાં બોલાવ્યો છે. મોટા ભાગના જે કમાન્ડરો હોય જે ટોપના એ તમામને શૂટ આઉટ કર્યા છે. હજુ પણ આતંકીઓને શોધીને તેમને મારવાનું સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. પણ ચિંતાનો વિષય એ પણ છે કે જવાનો શહીદી વળી રહ્યા છે. તો આજે જે ઉત્સાહ વધારવાનું આ કામ છે નૌશેરામાં એ જવાનો સાથે કર્યા છે. જમ્મુ કાશ્મીરનું આજે નૌશેરા રાજૌરી ક્ષેત્ર છે ત્યાં તેઓ દિવાળી મનાવી રહ્યા છે. મનોજ લાઈન પર જોડાયેલા રહેજો. તો વડાપ્રધાન મોદી લગભગ દરેક દિવાળી ઉજવવા માટે જવાનોની વચ્ચે જ પહોંચી જતા હોય છે. તે પ્રકારે આજે પણ તેઓ રાજૌરી ખાતે પહોંચી ગયા છે. જવાનોની સાથે જ તેઓ ઉજવણી કરવાના છે. અમુક વર્ષો પહેલાં તેમણે એવું પણ કહ્યું હતું કે આપણી બોર્ડરો પર તૈનાત જવાનો આપણને સુરક્ષિત રાખે છે અને તેમના કારણે જ આપણે દરેક તહેવાર ઉજવી શકીએ છીએ. પીએમ મોદીએ જે પાછલા વર્ષો છે ત્યારે પણ દિવાળી ઉજવી હતી. 2014માં તેઓએ સિયાચીનમાં દિવાળી ઉજવી હતી. ત્યારે પીએમ મોદી લગભગ દર વર્ષે છે તે સેનાનીઓ વચ્ચે પહોંચી જતા હોય છે, બોર્ડર પર પહોંચી જતા હોય છે. આપ સંદેશ ન્યૂઝની સ્ક્રીન પર અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે પીએમ મોદી લગભગ દર વર્ષે દિવાળીની ઉજવણી કરવા માટે સૈનિકો સાથે પહોંચી જતા હોય છે. કારણ કે તેઓનું માનવું છે કે જો સેનાનીઓ છે, જો આપણી સેના છે, તો જ આપણે તહેવારોની ઉજવણી છે તે શાંતિપૂર્વક કરી શકીએ છીએ. मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया. बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया. पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया. लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है. आज मैं फिर आपके बीच आया हूं. आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा. लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं. मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं. ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए. आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा. और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे. और मुझे पक्का विश्वास आप कहेंगे हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना. देखिए आप रिलैक्स हो जाइए. आप कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मत कीजिए. अच्छा आप ये भी बताएंगे ना कि मिठाई भी बहुत खाई थी? नहीं बताएंगे तो बोलो ना. साथियों, आज मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत मां की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है. किसी किसी को ही मिलता है जो सौभाग्य आपको मिला है. मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूं. आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपके संकल्प, यही आपकी पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं
चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है। तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते हैं उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। साथियों, जब मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया, तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने
नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी है, अपने पराक्रम से लिखी है, अपने पुरुषार्थ से लिखी है, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे, ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी। ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान से आए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है, न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में
झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं, वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता। वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है।
इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ये हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था, ये आज देश के लोग, आप सभी भली भांति जानते हैं। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, आज वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पूल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है। सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। साथियों, मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथाह सामर्थ्य के ही दर्शन नहीं होते। मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के, अडिग संकल्प शक्ति के और अतुलनीय संवेदनशीलता के। इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है। उसकी एक अलग पहचान है। अब विश्व की शीर्ष सेनाओं की तरफ एक प्रोफेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन आपके मानवीय मूल्य, आपके भारतीय संस्कार आपको औरों से अलग एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है। पहली तारीख को तनख्वाह आएगा इसके लिए नहीं आए आप लोग। आपके लिए सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना, રાજુરીના નૌશેરા आकाश छूता शौर्य है, तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती। जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है।
हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रकट होता है। ये आ गए ना, अरे चिंता नहीं, अब हो गया। ये छोटी चीज नहीं, आप देश की अखंडता और सार्वभौमिकता के प्रहरी हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के प्रहरी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शौर्य की प्रेरणा से हम अपने भारत को शीर्ष ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। साथियों, दीपावली की आपको भी शुभकामना है, आपके परिवारजनों को शुभकामना है, और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाम है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं फिर एक बार आप सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद।